Morning students, welcome once again in online classes. This is class 9th home science class. In this video we will discuss about diseases of malnutrition. So the first disease of malnutrition, that is marasmus. This disease is caused due to calorie deficiency. It results due to insufficient intake of carbohydrate and protein. Carbohydrate and protein की कमी से बीमारी होती है. You can see in this picture. The body consumes its fat reserve and tissues protein. Body becomes lean and weak, eyes depressed and skin wrinkled. Body बिल्कुल ही lean और weak हो जाती है, eyes और skin सारे wrinkles पड़ जाते हैं. There is tendency of excessive diarrhea. Improvement in the quality of diet, as in case of kwashiorkor, helps the child to recover. Second is anemia. A large number of people in our country suffers from anemia. Primarily, it is caused by the deficiency of iron in the diet, but anemia is also observed in some other conditions of physical health. वैसे देखा जाए तो ये आपकी डाइट में आयरन की कमी से होती है, बट कुछ फिजिकल भी डिसबैलेंस अगर हो जाए तो एनीमिया हो जाता है. फॉर एग्जांपल, प्रोलॉन्ग्ड malarial infections or presence of hookworms may lead to an anemic condition. Third is kwashiorkor. This disease is caused by a continued deficiency of protein in the diet. अगर डाइट में लगातार प्रोटीन की कमी हो जिससे kwashiorkor हो जाता है, तो और ये अधिकतर चिल्ड्रन में ही एज ऑफ 6 ईयर्स ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज़ goiter. It is caused due to the deficiency of iodine in the diet for a long time. Thyroid gland present in the neck region is enlarged during iodine deficiency and therefore the neck appears swollen. आप खाने में आयोडीन की कमी से ये होता है और इसमें थायराइड ग्लैंड बिल्कुल से फूल जाती है and neck appears swollen. Next is rickets. This disease is caused due to the deficiency of vitamin D. Due to deficiency of vitamin D, the intestine cannot absorb calcium. In the growing children, the disease is associated with bow legs and enlarged joints. For the forehead and chest bones protrude out. बाहर की तरफ निकल जाता है माथा और पीछे का सिर. Next is scurvy. This disease is caused by the deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin leads to retardation in growth and swelling and pain at the joints, hemorrhage of gums and loosening of teeth. Night blindness. It is maladaptation of vision to darkness, कि आपको रात में दिखाई नहीं देता. This conditions occur when the diet is regularly deficient in vitamin A. और लगातार डाइट में विटामिन ए की कमी हो, इससे ये नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहते हैं, हो जाती है. नेक्स्ट इज़ बेरी. This disease is caused due to deficiency of thiamine. Deficiency of vitamin B impairs the functioning of the nervous system and digestive system. Loss of appetite, constipation, muscles atrophy, headache, dizziness, insomnia, ये सारी बीमारियां भी इसकी कमी से होती हैं. नेक्स्ट इज़ मिनरल डिफिशियंसी. Mineral elements constitute a relatively small amount of the total body tissue but are essential for many important functions. और ये कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होते हैं. कई सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी के हैं ये पूरी तरीके से मिनरल्स पे डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम बिसाइड्स बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड न्यूरोमस्कुलर इरिबिलिटी. कैल्शियम जहाँ हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी बहुत हेल्प करता है. Here you can see a chart of deficiency diseases, function and source of some important minerals. मिनरल्स दिए हुए हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग दिए हैं, उनका फंक्शन दिया हुआ है और इनके सोर्सेज दिए हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करनी है. फिर हम आते हैं बैलेंस्ड डाइट फॉर एन अडल्ट. हियर यू कैन सी देयर इज़ अ चार्ट. तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, इन इंडिया में भी है कि इंडिया का अगर कोई है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कितना वेट आपको कितना ग्राम लेना चाहिए, कितनी उससे आपको कैलोरीज मिलती हैं, ये सारी चीज़ें. फिर है आपका कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स. कुकिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. ओनली मैन कुक्स हिज फूड इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एपेटाइजिंग. सिर्फ एक
ह्यूमन ही है जो कि अपने भोजन को पका के खाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से बना के खाते हैं. When vegetables are cooked, the plant cell bursts open so that the digestive juices in the food canal can act to these cells contents more readily. At the same time, the starch grain inside the cell also bursts open so that the starch is more readily digested. Another important result of cooking food is that the high temperature kills diseases, organisms and parasites that may be present in the raw food material. कि अगर कच्ची चीज़ें आप खाते हो तो उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जिससे वो मर जाते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ कुकिंग मेथड ऑन द फूड वैल्यू. नंबर 1 इज़ प्रोटीन प्रिजर्वेशन, कि आप अपने भोजन में प्रोटीन को कैसे बचा के रख सकते हो. और वेजिटेबल प्रोटीन मिलता कहाँ है आपको. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पीस, ग्राम्स, वेजिटेबल, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल, बीट, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा. एनिमल प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको. फ्रॉम मीट, मिल्क, फिश, एग एक्सेट्रा. कार्बोहाइड्रेट, it is found in starch and sugar. Starch is found in wheat, potato, sweet potato, rice, sago etc. फैट्स मिलते हैं आपको घी एंड ऑयल, मेल्ट चीज़ों से, चिकनी चीज़ों से मिलते हैं. विटामिन्स मिलते हैं जितनी भी आप रेशे वाली चीज़ें देख लो, फ्रूट्स देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, वहाँ से आपको विटामिन्स मिलते हैं. और कुकिंग के समय क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. द न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड ऑल्सो इन द शेल्स ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. छिलके आप यूज़ करिए खाने में, उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. स्टार्च एंड वाटर ऑफ द फूड मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन अवे. आप जितनी भी फूड मटेरियल्स का जो स्टार्च है या फिर आपने पानी उनका अगर बॉईल किया है, उन चीज़ों को भी नहीं फेंकना चाहिए. वेजिटेबल एंड मिल्क शुड बी बॉइल्ड इन आयरन पॉट्स so that they may receive some essence of iron with them. Some vegetables like carrot, tomato should be eaten raw. Eggs are useful if they are eaten boiled or half boiled. Always keep food covered. Unpolished rice is very useful. Milk, a balanced diet. Milk is a production of evolution designed specifically फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स. जो छोटे बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं. और मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सारे ही न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं. मिल्क इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल सॉल्ट, स्पेशली इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स. मिल्क एसेंशियली कंटेन्स ऑल द विटामिन, सारे विटामिन भी होते हैं. द प्योरिटी ऑफ मिल्क डिपेंड्स लार्जली ऑन द प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग milking, for it can get contaminated while taking out the milk from the animal. कभी कभी क्या होता है कि जब भी एनिमल से मिल्क को निकाला जाता है तो कुछ उसमें बाहरी गंदगी या कह सकते हैं कुछ मिक्स हो जाता है. तो क्या चीज़ें हैं कि जो ध्यान में रखनी चाहिए. द मिल्कमैन मस्ट हैव क्लीन ड्राई हैंड्स बिफोर बिगिनिंग टू ड्रॉ द मिल्क. तो जो दूध वाले हैं उनको थोड़ी सी साफ़ सफाई रखनी होती है जिससे कि कोई बीमारियां इस चीज़ से ना फैल सके. तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क है ये आप देख लीजिए. मॉडिफिकेशन है एनिमल मिल्क फॉर इन्फेंट फीडिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मिल्क प्रिपरेशंस हैं. ये सारी चीज़ें कुछ ख़ास नहीं है, ये सारी आप अपने से स्टडी करो. और इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.